One. In today's video, we are going to have a look at a few news clippings first. So the first one is of IBM, which has rolled out a set of new chips and servers and aims for simplified AI. The second is going to be Elon Musk's Starlink system, which has been approved for India. Third is of the recent attacks at Pulwama and Gorakhnath, of which no, in which the attackers used e-commerce websites and VPNs as a means of communication. So this is a report by FATF for the Financial Action Task Force. The fourth one is going to be BitChat, which is a new messaging app developed by Jack Dorsey. So Jack Dorsey was the founder of Twitter, which is now known as X. And the fifth one is kind of related to these previous four. The fifth one is going to be Pune Auto Parts firm defrauded of rupees 2.35 crores in man-in-the-middle cyber attack. In my personal opinion, all these five are related to each other. Why? Because they are all related to the modern computing systems, and in some way or the other they are related via a single name, that is what we call as information technology. So with a man-in-the-middle attack based on IT, information and technology. IBM, entirely information technology. Starlink, satellite used for communication, which is information technology. VPN is IT. E-commerce websites is IT. BitChat messaging, Bluetooth, IT again. Right. So अब प्रॉब्लम ये है कि एक फंडामेंटल लिंक नहीं होता है जनरली इन सारी चीज़ों को समझने के लिए. पीपल जनरली थिंक दैट दे आर ऑल डिफरेंट न्यूज़ एंड दे विल मेक सेपरेट नोट्स आउट ऑफ इट. But the problem happens is because of the foundation clarity or clarity we say. तो जो clarity नहीं होती उसके कारण problem आती है. So let's have a look at it. So I have actually tried to explain something. Let us first of all start with the internet only. What actually is internet? So all your understanding of the internet that you have with yourself, I think it is not worth it if you are from a non-technology background preparing for UPSC. So see, the conventional internet system as you know it is something that is you and your web browser. This is internet to you. By web browser I mean anything, any query that you put on your phone in the Google Chrome or YouTube or ChatGPT, that is complete internet to you. But things are very broad. I have done my BTech. I am a professional engineer and hence I have the necessary qualifications to make you understand this and to say something authoritatively. See, the whole of internet is based on one simple principle, that either you are a client or you are a server. Client means the one which asks and server is the one that serves or provides. So when you type in a query in Google Chrome, you are the client and the Google Chrome server fetches information, or you go onto some website, you load its homepage, then it is the server which you have been now connected to, and it will provide information of all your queries. See, अब होता क्या है, you are the client and the server generally is a web server or the web browser. I'm saying just for the layman language understanding, I'm saying it. ठीक है, web browser is not an entire server. A web browser is just an interface to the server. So now let's say that अब मैंने एक वेबसाइट ली है जिसको सब लोग आसानी से रिलेट कर पाएंगे. देखो जनरली क्या होता है, सर्वर्स बने हुए होते हैं बहुत सारे. ठीक है, हर एक कंपनी का अपना एक सर्वर होता है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करना चाहती है, जो चाहती है कि इंटरनेट पे अपना प्रेजेंस बनाए. वो अपना एक डोमेन नेम लेते हैं और एक वेब होस्टिंग सर्विस लेते हैं. होस्टिंग मतलब कि इंटरनेट के ऊपर एक स्टोरेज स्पेस. फॉर एग्जांपल जब हम ज़मीन लेने जाते हैं, किसी भी तरह का हम जब ज़मीन लेते हैं, ठीक है, तो ये हमने ज़मीन ली, सपोज दिस इज़ 50 बाई 50. ठीक है, ये 50 मीटर बाई 50 मीटर का है ना, तो टोटल ये 2500 स्क्वायर मीटर्स. ठीक है, नाउ यू विल नेम इट. कोई इसका कुछ एड्रेस होगा, कोई कॉलोनी होगी, कोई नाम होगा, कोई नंबर होगा. से दैट दिस इज़ 13 वैशाली नगर. सी, सो दिस इज इट्स नेम, जो कि इंटरनेट के केस में क्या हो जाएगा, इसका डोमेन. visionis.in इज द वेबसाइट नेम, है ना, और द डोमेन इन टेक्नोलॉजी टर्म्स वी से डोमेन, नॉट वेबसाइट. ठीक है, सो द डोमेन इज व्हाट वी कॉल एज द नेम. अब इसका जो एड्रेस है, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस या इसका जो स्टोरेज है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा होस्टिंग. सो इफ़ यू वांट टू गो टू विजन IAS, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल नीड इट एज एड्रेस. ठीक है, अब टेक्नोलॉजी टर्म्स में क्या होता है, ये जो होता है विजन IAS,
क्योंकि हर आदमी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं होता है, तो एक सर्विस होता है जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम और द DNS सर्वर, ठीक है। व्हाट दिस DNS सर्वर डज इज हर एक वेबसाइट का, हर एक डिवाइस का जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक IP एड्रेस होता है, दैट इज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। IP एड्रेस करंटली 2 टाइप्स में रनिंग है, वन इज द IPv4 एंड वन इज द IPv6। IPv6 इज मच मोर स्टेबल, मच मोर रिलायबल, मच मोर सिक्योर, क्योंकि उसमें अल्फान्यूमेरिक कोड्स भी है। जनरली आपने देखा होगा हैकिंग की मूवीज़ में या जितने भी ये साइबर सिक्योरिटी टाइप या साइबरपंक इंस्पायर्ड पिक्चर्स होती है हैकिंग वाली, उनके अंदर IP एड्रेस बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा आती है। सो जो IP एड्रेस होता है, हर एक डिवाइस जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है उसका एक IP एड्रेस होता है ना। हर एक आदमी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं होता, तो उसको ऐसे IP एड्रेस याद रखने पड़ेंगे। जैसे हमको फ़ोन नंबर्स एक ज़माने में याद रखने पड़ते थे या हम पहले कहीं लिख लेते थे, तो उस हिसाब से हमको वेबसाइट्स का भी IP एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम जब नया इंटरनेट था तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि IP एड्रेसेस लिमिटेड थे। नाउ इन द वर्ल्ड देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वेबसाइट, तो अगर आपको किसी वेबसाइट को खोलना है तो कितने IP एड्रेस याद रखोगे आप? इट्स अ सीरीज ऑफ नंबर्स ओनली। सो द DNS सर्वर क्या करता है, इस IP एड्रेस के ऊपर एक ये ऐसा नाम जो कि ह्यूमंस के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो, और ऐसा कोई भी ह्यूमन जिसका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड हो या नहीं हो, या इस पर्टिकुलर फील्ड से हो या नहीं हो, वो भी इसको इजीली याद रख सके, प्लस एक सेपरेट आइडेंटिटी भी दे सके, राइट। तो इसलिए DNS सर्वर काम आता है, ठीक है। नाउ इफ़ यू वांट टू रीच टू visionis.com, देयर आर 2 पॉसिबल वेज टू डू इट। फर्स्ट वन इज गो टू द Google Chrome और एनी वेब ब्राउजर दैट यू लाइक, टाइप इन www.visionis.in, ठीक है। इट विल लीड यू टू इट्स वेबसाइट और होम पेज, राइट। अनदर ऑप्शन इज यू टाइप इन दिस पर्टिकुलर IP एड्रेस। सो अगर आप इसको टाइप करोगे अपने लैपटॉप में तो भी VisionIS खुल जाएगा, दिस इज़ फॉर अ फैक्ट। हालांकि आपके पास हो सकता है एक स्क्रीन आए कि द कनेक्शन टू दिस वेबसाइट और दिस वेब पेज और दिस URL इज नॉट सिक्योर। वाई? बिकॉज वेन यू टाइप इन द डोमेन नेम द HTTPS हेडर इज ऑल्सो देयर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन सिक्योर्ड वर्जन, जो लॉक का सिंबल बना हुआ आता है URL बार के ऊपर, वो आता है। डायरेक्ट IP डालते हैं तो उसका HTTPS हेडर नहीं जाता है, इसलिए वो कनेक्शन को सिक्योर नहीं बताता है। नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल आई वुड से डायग्राम ऑफ यू एज अ क्लाइंट एंड visionis.in एज अ सर्वर। अब देखिए, ये तो हो गया छोटी बात, बहुत ही ज़्यादा छोटी बात। अब हम ये देखते हैं कि इंटरनेट वर्ल्ड में कैसे काम करता है, ऑल अक्रॉस द ग्लोब, हाउ डज दिस वर्क, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमने ऑलरेडी अंडर वाटर सी केबल्स डाल रखी है। लेट मी शो यू, दिस इज द सबमरीन केबल मैप, ठीक है। दिस इज द मैप ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। किस तरह से हमने कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ रखा है विद द हेल्प ऑफ फाइबर ऑप्टिक। सो फाइबर ऑप्टिक अंडर वाटर केबल्स बिछा रखी है, डीप ओशन फ्लोर तक ये केबल्स रन कर रही है और इनकी बराबर मेंटेनेंस होती है, और ऑल ओवर द इंटरनेट जो है वो इन केबल्स के थ्रू ही चल रहा है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट इज रनिंग वाया दीज केबल्स ओनली, ठीक है। अब इंडिया के पास में देखो, लेट मी जूम इन टू इंडिया। इंडिया में यहाँ पे कोई केबल वेबल नहीं है, केबल कनेक्शन वहीं तो होगा जहाँ कोई पोर्ट होगा। सो दिस इज़ महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र में देखो कितने सारे केबल कनेक्शन आ रहे हैं। दिस वेबसाइट लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन हैव अ लुक एट इट। इन केबल्स का अलग अलग नाम है, देखो, फ्लैग, यूरोपेशिया, FEA, दिस वन इज गोइंग टू बी प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, CMEV, Bay of Bengal gateway. If I click on it on the right hand panel, you can see the information related to it. Now see, the cable is connecting the Middle East, Southeast Asia, India, Sri Lanka, right? The cable length is 8,100 kilometers, and who are the owners? AT&T, China Telecom, Digital Dialog, Axiata, Reliance Jio. See, Reliance Jio, Vodafone, these are familiar names, right? टेलीकॉम मलेशिया, ठीक है। लैंडिंग पोर्ट्स इसके दिए हुए हैं। अब सी व्हाट हैपेंस इज, रिलायंस जियो बहुत बड़ा प्लेयर है, तो उसने इस केबल को सेटअप करने में कुछ पैसा लगाया है, ठीक है, तो वो कैपिटल भी बनाएगा इससे। अब देखो क्या होगा, रिलायंस जियो ने केबल डाल दी। केबल डालने के बाद में वो 2 तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। वन इज गोइंग टू बी द फाइबर कनेक्शन, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जियो फाइबर या एयर फाइबर, इनफैक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। So by fiber connection I mean both by cable and by satellite also, ठीक है। The next option is going to be SIM cards, जो जियो की सिम हम यूज़ करते हैं उससे भी इंटरनेट चलता है हमारा, 4G 5G 3G जो भी अवेलेबल होता है,
ठीक है। फाइबर कनेक्शन जब आप लगवाते हो, नाउ आई एम पर्टिकुलरली सेइंग फॉर द वायर्ड कनेक्शन, जो वाईफाई लगता है घर में जिसमें वायर होता है, 2 तरह का वायर होता है, एक येलो वायर और एक ब्लैक वायर, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, वो फाइबर कनेक्शन आप कनेक्ट करोगे वाईफाई के साथ में या राउटर या मॉडेम के साथ में, ठीक है। और उस वाईफाई से आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे। डिवाइस फॉर एग्जांपल वुड बी मोबाइल फ़ोन्स, प्रिंटर्स एट्सेट्रा एंड लैपटॉप्स, ठीक है। अब क्या होगा, रिलायंस जियो का अब जो लैंडिंग पोर्ट है वहाँ पे रिलायंस का मेन सर्वर बन गया, उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा, मैंने उसको नाम दे दिया IPXYZ, ठीक है। ये एक वेब सर्वर है, महाराष्ट्र में हमने देखा, डायरेक्ट केबल से कनेक्टेड है, इसका आईपी एड्रेस दिया XYZ, ठीक है। फाइबर कनेक्शन फाइबर के साथ में गया, राउटर तक कनेक्ट हुआ, ठीक है। इन्होंने फाइबर तार डाल दी, महाराष्ट्र से कनेक्ट करते 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 जयपुर तक पहुँच गई, ठीक है। राउटर से मैंने वायर कनेक्ट कर दिया, राउटर का आईपी एड्रेस मैंने असाइन कर दिया IP0, ठीक है। देन मेरा फर्स्ट जो डिवाइस कनेक्ट हुआ उसका IP दे दिया IP1, प्रिंटर का IP2, लैपटॉप का IP3, ठीक है। अब सपोज करो इसी तरह से ना रिलायंस जियो क्या करेगा, रिलायंस जियो की तरह जो अलग कंपनीज होगी जो वेब डोमेन्स और वेब होस्टिंग्स प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल GoDaddy का ऐड सबने देखा होगा ना, होस्टिंग्स के लिए, वेबसाइट का नाम जो इशू करते हैं, ठीक है। सो इनको रजिस्ट्रार बोलते हैं, वेब रजिस्ट्रार्स कहते हैं, जो हमको नाम प्रोवाइड करते हैं। तो विजन आईएस ने सपोज करो अपना URL जो है www.vision.is वो GoDaddy से लिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, GoDaddy और रिलायंस जियो आपस में कम्युनिकेट करेंगे और बोलेंगे कि मेरा जो डोमेन और होस्टिंग GoDaddy ने दे दिया, GoDaddy का अपना एक सर्वर रहेगा, वो सर्वर ये इस रिलायंस के सर्वर से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अब अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के अंदर विजन आईएस की वेबसाइट खोलता हूँ तो वो जो ट्रैफिक है जो मैंने क्वेरी डाली है वो सबसे पहले मेरे मोबाइल फ़ोन में इनपुट करता हूँ, वो जाती है मोडेम में या वाईफाई में, विद द हेल्प ऑफ फाइबर कनेक्शन इट गोज़ टू द सर्वर्स ऑफ रिलायंस जियो, ठीक है। रिलायंस जियो स्टैब्लिशेज अ कनेक्शन विद द GoDaddy सर्वर उसको रूट करेगा, डायरेक्ट करता है विजन आईएस के आईपी एड्रेस पे, ठीक है। अब विजन आईएस के पास में क्वेरी आ चुकी है, द सेम प्रोसेस रिटर्न्स, ठीक है। यहाँ तक विजन आईएस अपना जो सॉल्यूशन होगा वो GoDaddy सर्वर पे भेजेगा, ये रिलायंस जियो के सर्वर पे जाएगा, फाइबर कनेक्शन इट विल कम टू माई वाईफाई एंड द वाईफाई विल सी कि क्वेरी कौन से कनेक्टेड डिवाइस से आई थी, मोबाइल फ़ोन से आई थी, तो इट विल डायरेक्टेड टू मोबाइल फ़ोन, ठीक है। ये हो गया अपना लोकल, ये मैंने एक बताया हाइपर लोकल, ठीक है। ये वाला विजन आईएस एंड मी, ये दिस इज़ अ हाइपर लोकल, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क भी बोल सकते हैं इसको एक तरह से। दिस इज़ एस्टैब्लिश नेटवर्क, वेल एस्टैब्लिश नेशनल नेटवर्क, ठीक है, पूरे देश के अंदर काम करेगा ये। अब सपोज़ करो मुझे CIA की वेबसाइट खोलनी है जिसका सर्वर, जिसका ओनर, जिसका सब कुछ अमेरिका में रहेगा, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास में रिलायंस जियो ने कनेक्शन केबल डाल रखी है अंडर वाटर, वैसे ही अमेरिकन जियो भी कोई होगा, ठीक है। अमेरिकन जियो का फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो AT&T, जो सिम कार्ड्स और ये नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अमेरिकन जियो होगा, अमेरिकन जियो का खुद का सर्वर होगा, और ठीक जैसे अपने पास में GoDaddy थी, हाँ GoDaddy बाहर की कंपनी है, उसी तरह से कोई रैंडम अलग अमेरिकन होस्टिंग सर्विस होगी जो वेबसाइट्स को स्टोरेज स्पेस और उनका डोमेन नेम प्रोवाइड करता है, खुद का DNS सर्वर होगा, और वो CIA.gov ने लगा रखा होगा, ठीक है। CIA.gov ने होस्टिंग नहीं ली होगी, उन्होंने खुद का एक सर्वर स्टैब्लिश कर दिया होगा, ठीक है। खुद का सर्वर भी कनेक्ट बना सकते हैं हम, खुद का सर्वर बना के उसमें फाइबर कनेक्शन डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा अपाचे सर्वर जिसको हम कहते हैं वो ऑटोमेटिकली हमको एक इस तरह का कनेक्शन प्रोवाइड करने में मदद कर देता है, ठीक है। दिस इज़ अ फाउंडेशनल लेवल ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब देखो, अब लेट अस कम बैक टू आवर न्यूज़ क्लिपिंग्स। So the first one is going to be IBM rolls out new chips and servers, aims for simplified AI. The company is claiming a 99.999% uptime. First of all, what is uptime? Uptime is the time where the devices are running efficiently and providing all of the queries. ठीक है, हर एक queries का जवाब मिल रहा हो, सिस्टम कम्प्लीटली चालू हो, अप एंड रनिंग हो, विदाउट एनी लेटेंसी, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी बैरियर्स, वो काम कर रहा हो, दैट इज़ नोन एज अप टाइम, ठीक है। 99.999% अप टाइम का मतलब है कि ये सर्वर इसका कभी बंद नहीं होगा, तो सर्वर बंद नहीं होगा इसका मतलब फॉर एवर रनिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। IBM पहले बहुत बड़ा एक जायंट प्लेयर था, इफ़ यू हैव वॉच दैट मूवी जॉब्स, स्टीव जॉब्स, है ना। सो IBM का जो चिपसेट है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था एक टाइम पर। नाउ IBM इज़ काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ NVIDIA, ठीक है। NVIDIA का जो टर्नओवर है या जो टोटल एसेट्स है उसके, वो $4 ट्रिलियन के अप्रॉक्सीमेटली है। इट इज़ रिचर देन आई वुड से 100 कंट्रीज़ कम्बाइंड। 4 ट्रिलियन, इंडिया की इकोनॉमी कितनी है देख लो, और अब कंपेयर करो NVIDIA को, सच बिग एज NVIDIA, ठीक है।
सिंप्लीफाइड एआई को सिंप्लीफाई करने के लिए सर्वर्स को बना रहे हैं, ठीक है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ऑन ट्यूजडे अनाउंस द नेक्स्ट जनरेशन सर्वर्स, ठीक है। सो एंटायर इंटरनेट इज बेस्ड ऑन सर्वर्स ओनली। जितना अच्छा सर्वर होगा उतना ही एफिशिएंटली इंटरनेट काम करेगा, उतना ही अच्छे से आप प्रोसेसिंग कर पाओगे, ठीक है। द नेम ऑफ इट इज़ पावर 11। These will consist of a new system called Power 11 and a server line. So Power 11 is the chipset and a server line whose name is not yet clear, ठीक है। The latest offering from IBM closely resembles NVIDIA system structure. However, IBM does not view itself as a competitor to NVIDIA, but is instead focusing on the simplification of productive AI for businesses. Right? 99.999% uptime अभी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे जितने भी कंपटीटर्स है, बड़े बड़े कंपटीटर्स है, जितने भी कंपनीज है, वो सारा यही ऑलमोस्ट यही कर रही है। AWS सर्वर्स है ना, AWS हम कहते जाते हैं। अमेजॉन वेब सर्विसेज वो भी लगभग इतना ही ऑफर करते हैं, ठीक है। तो ये मार्केटिंग गिमिक है, फॉर श्योर है, लेकिन इन्होंने कुछ एडवांस भी किया है ना, दैट इज़ ऑल्सो टू बी रिकॉग्नाइज्ड। The system is also made to detect a ransomware attack and respond. Ransomware attack, a type of cyber attack, जब आपको फिरौती मांगते हैं ना, आपका डेटा कॉपी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, एक काइंड ऑफ वो लॉक कर देते हैं और तभी आपको एक्सेस देते हैं उसका, जब आप उनको रैंसम भेजते हो, फिरौती भेजते हो, उसके बदले में आपको आपकी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। एंड हाउ इज दिस गोइंग टू बी अचीव? दिस विल बी अचीव्ड यूजिंग अ फीचर कॉल्ड IBM पावर साइबर वॉल्ट। तो इन्होंने क्या किया, पहले से एक साइबर वॉल्ट बना दी, डिजिटल वॉल्ट बना रखी, जैसे ओप्पो वीवो के फ़ोन के अंदर भी आता है ना, फाइल वॉल्ट करके एनक्रिप्शन देता है। अब इवन इन मैक ओएस ऑल्सो इट इज़ देयर। सो पहले ही एक आप अपने डेटा को एक साइबर वॉल्ट के अंदर रखो ताकि कोई एक्सेस ही नहीं कर पाए, ठीक है। नाउ IBM also offers protection of firmware integrity attacks with a built-in quantum safe cryptography, ठीक है। साइबर अटैक इज जनरली सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक, है ना, आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर अटैक होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, आपका डेटा पे, आपके डिजिटल इन्फॉर्मेशन पे अटैक होगा। फर्मवेयर इज जनरली रेफर्ड टू एज द हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं। जैसे एक टाइम पे एक अटैक पॉपुलर हुआ था कि कॉल, मोबाइल फ़ोन पे आपके कॉल आता था और जैसे ही आप उस कॉल को पिक करते थे तो आपका फ़ोन ब्लास्ट होता था। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ फर्मवेयर अटैक, क्योंकि वो उस स्पीकर को इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करता था कि वो बैटरी में जो हीट जनरेट हो जाए और वो बैटरी एक्सप्लोड हो जाती थी। सो दैट इज़ नोन एज अ फर्मवेयर अटैक। एक USB रबर ढकी USB आती है, उसमें एक बहुत अच्छा कैपेसिटर होता है, तो उस कैपेसिटर को बिल्कुल पेनड्राइव जैसे लगती है। उस पेनड्राइव को अगर आप सिस्टम में लगा दोगे तो वो इमीडिएटली एक वोल्टेज प्लंज छोड़ देगा आपके सिस्टम के अंदर और पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा, पूरा मदरबोर्ड आपका जल जाएगा, तो वो चलेगा ही नहीं। सो दैट इज़ नोन एज अ फर्मवेयर अटैक। जनरल ऑल दीज साइबर अटैक्स आर जनरली सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक्स, ठीक है। दिस इज व्हाट वी मीन एज फर्मवेयर अटैक। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट। एलोन मस्क स्टारलिंक अप्रूव्ड फॉर इंडिया, ठीक है। अब देखो स्टारलिंक सर्विसेज क्या है। अभी हमने देखा कि सबमरीन केबल्स पे मैप है, सबमरीन केबल का मैप देखा जो अंडर वाटर ऑप्टिक फाइबर केबल कनेक्शन से हमने कर रखा है। अब देखो यार, इनकी मेंटेनेंस ना बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि सॉल्ट वाटर के अंदर आपने केबल कनेक्शन कर रखा है। पहली बात तो इसको डालना बहुत मुश्किल काम है, अंडर वाटर काम कैसे करेगा, कौन जाएगा रिपेयर करने के लिए। प्लस इतना डीप फ्लोर के ऊपर इन्होंने छोड़ रखा है, तो पहली बात तो सॉल्ट वाटर है, कोरोजन होता है केबल्स का, अल्ट्रा हाई प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल यूज़ करने पड़ते हैं। प्लस जो ओशन लाइफ है वो भी तो इससे डिस्टर्ब होती है और इसको डिस्टर्ब करती है। कोई बड़ी सारी वेल अगर कोई डेड हो गई है, मर चुकी है, और वो सपोज़ करो उस केबल के ऊपर जा कर के लैंड कर गई, अब वेल का वजन कितना टन्स में होता है, वो टन कितना, और फिर बॉडी डीके होकर के पानी भर के वो नीचे अगर गिरेगी उस केबल के ऊपर, तो केबल के ऊपर टूटने का खतरा। बहुत अजीब व गरीब फैक्ट्स है ये। प्रैक्टिकली स्पीकिंग दे आर वेरी टफ टू बिल्ड एंड टू रिपेयर एंड टू मेंटेन, ठीक है। अब एलोन मस्क ने क्या किया है, एक सैटेलाइट पूरी स्ट्रीम लॉन्च करी है। ये प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट ओनली। सो इंस्टीड ऑफ दीज के वायर्ड कनेक्शंस, हमने एक सैटेलाइट का स्ट्रीम लगा दिया। रात को कई बार दिखता भी, इसकी ट्रैकिंग ऐप है जिसमें आप रात को देख सकते हो, पूरा का पूरा स्ट्रीम जाता है। 35 सैटेलाइट्स के आसपास का क्लस्टर एक ही लाइन में मूव करता है, फिनोमिनल व्यू, है ना। तो इन्होंने क्या किया, पूरे अर्थ को सराउंड कर दिया सैटेलाइट स्टारलिंक सिस्टम से, और ये कह रहे हैं कि अब हम जो है इंटरनेट विदाउट केबल सीधा वायरलेस डिलीवरी देंगे। यानी मैं क्लाइंट हूँ यहाँ पर, सपोज़ करो मुझे कोई वियतनाम की वेबसाइट खोलनी है, तो माई सर्वर और माई इंटरनेट कनेक्शन विल नॉट गो फ्रॉम दिस टू दिस, फिर ऐसे इट विल डायरेक्टली गो टू द सैटेलाइट एंड सैटेलाइट विल कनेक्ट मी डायरेक्टली टू द ऑफिशियल सर्वर, ठीक है। सो मच मोर फास्टर, क्योंकि आपको इतनी जगह से राउटिंग नहीं करनी पड़ी। आपने रिक्वेस्ट भेजी सीधा यहाँ से सैटेलाइट को गई, सैटेलाइट से सीधा वियतनाम में गई, वियतनाम ने सैटेलाइट को भेजी, सैटेलाइट ने
आपको भेज दी। सो टाइम एफिशिएंट, ठीक है। अभी तो इतना पैसा है, क्या प्राइवेट प्लेयर कर रहा है तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग सर्विसेज नोन एज स्टारलिंक ऑफ इलोन मस्क। थर्ड वन इज गोइंग टू बी पुलवामा गोरखनाथ अटैकर्स यूज्ड ई कॉमर्स साइट्स एंड वीपीएन, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट दे यूज फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि अमेजोन के ऊपर भी आप चैट कर सकते हो, है ना। एंड वीपीएन, नाउ व्हाट इज़ अ वीपीएन? वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जनरली पता नहीं होता क्या हो क्या रहा है। सी आई एम हियर, सी दिस इज़ इंडिया, राइट। ये पूरा पूरा इंडियन सिस्टम है, इंडियन टेरिटरी के अंदर ही सारा काम हो रहा है। मैं यहाँ पे हूँ, मुझे वेबसाइट खोलनी है जापान की, ठीक है, इंटरनेट ऑफ जापान। आई वॉन्ट टू एक्सेस सम वेबसाइट्स ऑफ जापान, ठीक है। बट जापान ने वेबसाइट्स रेस्ट्रिक्ट कर रखी है कि इंडिया वाले इस वेबसाइट को नहीं खोल सकते, या गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि आप इस वेबसाइट को नहीं खोल सकते। सो व्हाट इज़ द पॉसिबल थिंग दैट आई कैन डू इज़ आई कैन हैव अ वीपीएन प्लान, वीपीएन एप्लीकेशन, ठीक है। वीपीएन सर्वर मेरे पास में होगा, ठीक है। मैं उस वीपीएन से कनेक्ट करूँगा अपने मोबाइल फ़ोन को। सो द मोबाइल फ़ोन विल यूज़ द ट्रैफिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वाईफाई, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये जो राउटर है क्योंकि डायरेक्टली इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, या इस गवर्नमेंट ने कुछ कर रखा है, या एक प्राइवेट नेटवर्क में मुझे एक्सेस करना है, ठीक है। डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, वायर्ड या वायरलेस, ना सबमरीन केबल है, ना स्टारलिंक सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करने दे रही है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन कनेक्ट टू अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है, जो कि जापान की वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। दिस कंपनी will provide me an IP address of some different country. For example, there is a server in Poland, ठीक है। मैं अपने फ़ोन में VPN एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा, इंटरनेट मुझे वाईफाई प्रोवाइड करेगा। दिस वाईफाई विल कनेक्ट टू द VPN's IP एड्रेस ऑफ पोलैंड, एंड उस टाइम पे अगर VPN कनेक्ट करने के बाद में मैं अपनी जियो लोकेशन देखूँ, अपने फ़ोन में लोकेशन देखूं, तो मुझे वो लोकेशन पोलैंड की दिखाएगा, ठीक है। अभी आप अगर अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन करके गूगल मैप में देखते हैं तो आपकी लाइव लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, बट द मोमेंट यू कनेक्ट योर डिवाइस टू अ VPN, इट विल शो यू द जियो लोकेशन ऑफ योर VPN सर्वर्स कंट्री, जहाँ पे वो सर्वर बेस्ड होगा। तो ये आपकी जियो लोकेशन को चेंज कर देता है, ठीक है। And now I can easily access, because Poland has not restricted the internet of Japan, and I have connected my device to the Poland server. Poland को कोई restriction नहीं है, so with the help of me, with the help of Poland server, I am able to connect to the internet of Japan. This is how VPN works, ठीक है। अब now let us come to our main topic. So Pulwama Gorakhnath attackers used e-commerce sites and VPN. This is the use of VPN, ठीक है। VPN की यूज़ किया इन्होंने, सपोज करो कोई कंट्री है, आपस में बात करनी है, VPN अब सेफ़ हो जाता है, VPN बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, देखो, जब आप विजन IS को एक्सेस करोगे तो मोबाइल फ़ोन आपका ट्रैफिक वाईफाई को देगा, वाईफाई फाइबर कनेक्शन के साथ में रिलायंस जियो को लेकर के जाएगा, रिलायंस जियो गोडैडी को देगा, गोडैडी विजन IS को देगा। अब यहाँ पे रिलायंस जियो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो आपको इंटरनेट दे रहा है, वो चेक कर सकता है कि आप क्या ट्रैफिक भेज रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ही फिल्टरिंग हो जाती है। गवर्नमेंट ने पॉन्ड पे बैन लगाया है तो ISP को ही तो बोला, ISP तो ही चेक करने वाला है कि भाई आप ट्रैफिक कैसा आ रहे हो। वो देखता है कि ट्रैफिक पोर्नोग्राफी कंटेंट का आ रहा है तो वो ब्लॉक कर देता है, एक्सेस नहीं करने देता, ठीक है। लेकिन आप इस लिंक तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो VPN तक, आप पहले ही उसको डाइवर्ट करके दूसरे सर्वर पे पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कोई अगर होगी तो भी ISP को पता तो चल ही जाएगा कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, या किसी तरह का बैन किया हुआ है वेबसाइट को, उन वेबसाइट्स पर अगर कोई एक्सेस करेगा तो वो करने ही नहीं देगा। सो द अटैकर्स दे यूज VPN सर्वर्स टू कनेक्ट टू द सर्वर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू एक्सेस वेबसाइट्स दैट आर रेस्ट्रिक्टेड और नॉट अवेलेबल फॉर जनरल यूज, ठीक है। Delegations reported state sponsorship for TF purposes coupled with sanctions, circumvention techniques through trade and smuggling mechanisms where the national government potentially plays a supportive role. Terrorist financing risks के नाम से ये अपडेट जारी की है FATF ने, ठीक है। The FATF flagged the decentralization of terror operations with regional financial hubs and self-finance cells adapting to local context and involving a range of funding sources. Decentralized financing, you know it very much, हाँ।
You hear it very much, and I hope you already know what decentralization of terror operations means, है ना. पूरी तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूज़ करते हैं. पैसा यहाँ से आएगा, वेपन्स यहाँ से आएंगे, अटैक यहाँ करना, इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगी, इनपुट्स यहाँ मिलेंगे, आउटपुट्स वहाँ देने. कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वेयर नो इंडिविजुअल पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. A lot of organization, individuals play in it, right? So this is VPN. Now the fourth one is going to be no internet, no problem. BitChat lets you message via Bluetooth. अब क्या हो रहा है, जैक डोर्सी ने एक नया एप्लीकेशन डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ. ये है BitChat, नाम है इसका. नाउ BitChat का एक खास बात क्या है, ये कन्वेंशनल इंटरनेट यूज़ नहीं करता. इवन इफ़ यू डू नॉट हैव इंटरनेट, you will still be able to send messages to your friends or your connections. ठीक है, ये कैसे यूज़ कर रहा है? BitChat uses Bluetooth to send and receive messages. कुछ इसी तरह का कुछ टाइम पहले एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन किया था एप्पल ने, जिसको वो छोटा सा एप्पल का एयरटैग लॉन्च किया था. ठीक है, अब देखो क्या होता है. सपोज़ करो ये मेरा एक डिवाइस है, ये मेरा मेन डिवाइस है, माई डिवाइस. ठीक है, दिस इज़ द डिवाइस ऑफ माई फ्रेंड. आई डो नॉट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, इसलिए मैंने बॉक्सेस को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया है. सेपरेट डिवाइसेज है. ठीक है, अब मुझे मेरे फ्रेंड से बात करनी है. ठीक है, लेकिन मेरे पास इंटरनेट नहीं है. सो जैक भैया ने क्या किया है, इन्होंने ब्लूटूथ का एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस प्रोवाइड किया है. कैसे? ये फ़ोन्स के ब्लूटूथ यूज़ करके उन मैसेजेस को उन डिवाइसेस पे हॉप करवा करके वहाँ तक पहुँचवा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ब्लूटूथ का कनेक्शन बहुत छोटी रेंज का होता है ना, 10, 15, 20 मीटर्स मैक्सिमम. वो भी जितना दूर जाओगे उतना कनेक्शन पुअर होता जाएगा. तो अल्टीमेट गोल ऑफ BitChat इज़ टू हैव ब्लूटूथ कनेक्शंस. ठीक है, मैं जैसे ही कोई मैसेज भेजना चाहूँगा, सपोज़ करो मैं हूँ अभी जयपुर में, आई एम एट जयपुर. and my friend is at Punjab. ठीक है, बीच में somebody is at Sikar. ठीक है, somebody is at Ajmer, not Ajmer, say भरतपुर. संबारी इज एट चूरू. ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होंगे ना, 20 मीटर के रेडियस में जितने भी डिवाइसेस जिनका ब्लूटूथ ऑन रहेगा, ब्लूटूथ कनेक्शन रहेगा. अब देखो क्या होगा, मुझे मैसेज भेजना है पंजाब में मेरे दोस्त को. ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन अगर होता तो मैं इंटरनेट की मदद से, अपने राउटर की मदद से या सिम कार्ड के इंटरनेट की मदद से डायरेक्टली इसको व्हाट्सएप कर देता. ठीक है, अब BitChat के ऊपर क्या होगा, मैं कोई मैसेज अगर भेजना चाहता हूँ, मैं जयपुर में हूँ. ठीक है, अब देखो कनेक्शन किस तरह से होंगे, बहुत n नंबर ऑफ डिवाइसेस के बाद में ये मैसेज इसके पास में पहुँचेगा. ठीक है, तो मेरे जो 20 मीटर के रेडियस के अंदर जो भी कोई ब्लूटूथ डिवाइस होगा, ये मैसेज सबसे पहले उसको डिलीवर कर देगा. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ सीकर लिख दिया है, क्योंकि ऐसे कितने सारे नोड बनाने पड़ेंगे 20 मीटर के. ठीक है, तो नियरेस्ट मैं बोल रहा हूँ सीकर वाला बंदा फॉरवर्ड कर देगा उस मैसेज को एनी डिवाइस दैट इज़ नियरेस्ट इन कनेक्शन टू इट. चूरू वाला विल फॉरवर्ड इट टू भरतपुर एंड भरतपुर पर्सन विल फॉरवर्ड इट टू पंजाब. ठीक है ना, अब हमें इंटेंशनली फॉरवर्ड नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, अपने आप प्रोसेस करेगा. ठीक है, दिस इज BitChat इन अ नटशेल. ठीक है, अब देखो BitChat इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म विच मीन्स इट हैज़ नो सेंट्रल सर्वर्स, कोई सर्वर नहीं है. इन अ पोस्ट ऑन X, Dorsey said that the new messaging app was his experiment in Bluetooth mesh networks, relays and store and forward models, message encryption models and a few other things that gives off IRC vibes. ठीक है, it uses decentralized peer-to-peer network technology. BitChat works by enabling encrypted communication between nearby Bluetooth-enabled devices. What it means is that BitChat directly sends messages from one device to another, with every device on the network acting as a node in itself and helping extend the range bit by bit. ठीक है, इस तरह से. तो अगर जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, वहाँ पर भी आप ब्लूटूथ की मदद से कम्युनिकेशन कर पाओगे. दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ. ठीक है, लेट अस कम ओवर टू द फिफ्थ पार्ट. अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब पढ़ना ही नहीं है इसको. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल ही जाएँ कि ये तो बता दिया मैंने कि अब इसमें ज़्यादा और क्या ही पढ़ना है. यू हैव टू रीड इट. आई एम जस्ट मेकिंग यू
making this stuff easier for you to understand. Now the fifth one is going to be Pune auto parts firm defrauded of rupees 2.35 crores in man in the middle cyber attack. Why man in the middle cyber attack? Man in the middle. Man in the middle. What do you understand by man in the middle? See, come over to this one. इसको अब हटा देते हैं, VPN कनेक्शन तोड़ देते हैं हमारा. I am this one with IP1 connected to Vision IAS. सी अब यहाँ पे देखो कितने सारे कनेक्शन है. मेरा ट्रैफिक मोबाइल फ़ोन से वाईफाई में जाता है, वाईफाई से रिलायंस जियो के सर्वर में जाता है, सर्वर से होस्टिंग सर्वर पे जाता है, होस्टिंग सर्वर से विजन आई पे जाता है. बीच में कितने सारी जगह लूप होल्स है ना. यहाँ पे कोई भी कनेक्शन को इंटरप्ट कर सकता है, स्पूफ कर सकता है, वॉच कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, मेरे वाईफाई और मेरे फ़ोन के कनेक्शन के बीच में. ठीक है. सो मैन इन द मिडल अटैक इज़ दिस ओनली. जहाँ पे आपको एंडली इन द एंड कनेक्ट करना था, जहाँ पे आपको इन दी एंड कनेक्ट करना था इसको, उसके बीच में अगर कोई भी पर्सन, कोई भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है आपके साथ में, आपका नेटवर्क इंटरसेप्ट किया जा रहा है, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो दैट इज़ नोन एज अ मैन इन द मिडल अटैक. इफ़ यू वांट, आई कैन मेक अ वीडियो, very this type of explainer video on cyber attacks also. Cyber attacks are also in news and also very responsible for us to read for UPSC syllabus. See, some types of attacks are network based attacks. For example, denial of service, DOS attack, DDoS is there, man in the middle attack. This is a network based act. ये आपके नेटवर्क पे अटैक करता है. Then there is DNS spoofing, जो मैंने बताया अभी. DNS आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है. ठीक है. ये जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो आईपी एड्रेस को डोमेन का नाम देता है, इसमें आईपी नाम तो सेम रह जाएगा लेकिन आईपी दूसरा पॉइंट कर देगा, या किसी भी तरह से आईपी सेम रह जाएगा, नाम दूसरा रहेगा, नाम चेंज कर देगा, आईपी सेम रहेगा. ठीक है. डीएनएस स्पूफिंग होता है. आईपी स्पूफिंग होता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है, जो सर्वर चेक करता है कि भाई आईपी एड्रेस से ट्रैफिक सही है या नहीं है, उस आईपी को स्पूफ कर देता है. देन देयर आर malware based attacks, that is virus, worm, trojan horse, ransomware, spyware, adware, rootkits are there. Then there are social engineering attacks, that is phishing, spear phishing, whaling, wishing, smishing, pretexting, baiting. Then there are web application types of attack, जो वेबसाइट्स के ऊपर किए जाते हैं. ठीक है. SQL injection is there, cross site scripting, zero day exploit, session hijacking, insider attacks are there, advanced persistent threats are there, insider threats, credential stuffing. ठीक है. हार्डवेयर अटैक्स होते हैं, की लॉगर, ईविल ट्विन. की लॉगर अभी पेगासस बहुत पॉपुलर हो रहा था, जो ट्रैप कर रहा था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का डेटा. ठीक है. अभी रिसेंट में ग्लोबल बहुत बड़े बड़े साइबर अटैक्स भी हुए हैं. अभी WannaCry आया था 2017 में, वो रैंसमवेयर था, बहुत तगड़ा रैंसमवेयर था. लोगों के सिस्टम्स लॉक हो रहे थे, अपना पर्सनल डेटा नहीं एक्सप्लोर देख पा रहे थे, वो उनको रैंसम देना पड़ रहा था. SolarWinds अटैक आया था 2020 में. ठीक है. पूरे यूएस का सप्लाई चेन पर अटैक हो गया था, गवर्नमेंट एजेंसीज हिल चुकी थी यूएस की. 2010 में आया था स्टक्सनेट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो अभी फोर्डो फैसिलिटी इन्होंने तोड़ा, उसका स्टक्सनेट आया था. So if you want it, I can make a separate video on it. This was all from my side in today's video. Or I'm not a professional teacher, I'm just a student like you, but I think that my science and technology portion is something which I can share with you. I can make things easier for you a little bit. That is why I'm uploading these videos. Alright, thank you guys. If you have any questions or if I have done any mistake, no problem, you can correct me in the comments and tell me so that I can improve in the next videos. Thank you so much, and if you like this video, please share it with someone whom you think would benefit from watching it, and also don't forget to subscribe.